ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ PM ಜನಜಾತಿ ಆದಿವಾಸಿ ನ್ಯಾಯ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನ ಇದರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನನೀಯ ತನುಜಾತಿ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿ ವನಗಳ ನಾಡೆ ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದನ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇಗದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುವಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಶಂಕರರ ಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ಗಂಗ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪುಣ್ಯ ಪಂಪಲ ತುಮಿಪತಿ ಚಂದ ಕುಮಾರವ್ಯಗಳ ರಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯ ರಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಕೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಡಿನ ನಾಡೆ ಕಂಕಣ ಜಕಡರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಗಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಜ್ಞಾನ ಜನಗಣ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಕಾಯಕ ವೈದಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ತೋರುವ ದೀಪ ಬಚ್ಚೆಯು ಕನ್ನಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒತ್ತನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನವೆಂಬರ್ 15 ಹಾಗೆಯೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಮೇರಿಕ ದೇಶವನ್ನು ಕೈಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಡು ಕುರುಬರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು BSNL ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನಾಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಇದರ ನಂತರದವರು ಶ್ರೀ ಶಿವನೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ, ಜೇನುಕುರುಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಂಜನಗೂಡು, ಜೇನುಕುರುಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಇವರು ತಯಾರಾಗಿರಿ. ಬಸಪ್ಪ ಕೆ ಅವರು ನಾಗಪುರ 2ನೇ ಘಟಕ. From KSTRI, I'm grateful to Professor L. Srinivas, the director, and Ms. Prabha, the deputy director, and lastly the regional office South team of TriFed. छूटा हुआ रहता था, उनके लिए आधार, जाति प्रमाण पत्र और जनधन खाते, इसलिए जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के माध्यम से यह आपके नेतृत्व में कार्य चल रहा है। PM जनमन मिशन विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है। आइए इस मिशन पर आधारित एक लघु फिल्म देखें।
ये जनजातीय समुदाय जो अभी तक अपने मौलिक अधिकारों से भी वंचित थे, उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी झारखंड से एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। पिछले 2 माह में 100 से अधिक जिलों में 7,500 से अधिक कैंप लगाए गए हैं, जिनमें आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जनधन खाता बनाए जा रहे हैं ताकि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं से वंचित ऐसे लोगों को इसका लाभ मिल सके। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विगत 2 माह में 4,700 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें अब तक 1 लाख लाभार्थियों को पक्के घर और 400 से अधिक अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसाहटों में 1200 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है। साथ ही 100 छात्रावास, 900 आंगनबाड़ी, 100 मेडिकल यूनिट, 400 मल्टीपर्पज सेंटर और 400 वन-धन केंद्र, 6,500 से ज्यादा टोलों में 70,000 से ज्यादा घरों में बिजली की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 500 गांवों के लिए 200 से ज्यादा मोबाइल टावर भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे इन सुदूरवर्ती गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हर घर नल पहुंचाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जनजातीय सशक्तिकरण, गौरवशाली भारत के संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए लागू की गई पीएम जनमन योजना एक दूरगामी पहल है, जो जनजातीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। आइए हम सब मिलकर इस महाअभियान में आगे बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इन प्रयासों को साकार करें और देश के जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख परिवारों को पक्के घर स्वीकृत किए गए हैं और 4,700 करोड़ रुपए की लागत से 1200 किलोमीटर सड़क, 1830 गांवों में नल से जल, 100 मोबाइल मेडिकल यूनिट, 100 स्कूलों में छात्रावास, 910 आंगनबाड़ी केंद्र, 405 वन-धन केंद्र, 450 मल्टीपर्पज सेंटर और 70,000 घरों की बिजली एवं 500 गांवों में मोबाइल टावर भी स्वीकृत किए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि इन योजनाओं को अनुमति प्रदान करें और 1 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त का हस्तांतरण बटन दबा दें। असली लाभार्थी को ये पता ही नहीं चलता था
कि ऐसी कोई योजना शुरू भी हुई है। जिसको योजना का पता चल भी जाता था उसे लाभ पाने के लिए कितनी मुश्किलें आती थी। यहां अंगूठा लगाओ, फलाने पे साइन लाओ, ये पर्चा दिखाओ, आज नहीं कल आओ, न जाने क्या क्या सुनना पड़ता था। अब पीएम जनमन महाअभियान के में हमारी सरकार ने ऐसे सभी नियम बदल दिए जिससे आपको परेशानी होती थी। पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक आसानी से सड़क बने, इसके लिए सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना के नियम बदल दिए। जब सड़कें बनती हैं तो स्कूल जाना भी आसान हो जाता है। बीमारी के समय कोई मुसीबत आ जाए, अस्पताल पहुंचना है तो अगर रास्ता है तो जिंदगी बच जाती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट से जुड़ा नियम भी बदल दिया। पिछड़ी जनजातियों के हर परिवार तक बिजली पहुंचे, इसके लिए विशेष तौर पर उन्हें सोलर पावर वाले कनेक्शन दिए जा रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली ये बीमारी जड़ से ही समाप्त हो। इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में एक अभियान शुरू किया है। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी सिकल सेल की जांच की जा रही है। पिछले 2 महीनों में 40 लाख से ज्यादा लोगों का सिकल सेल परीक्षण किया जा चुका है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार अपने जनजातीय भाई बहनों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। अनुसूचित जनजाति से जुड़ी योजनाओं का बजट हमारी सरकार ने 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले जो छात्रवृत्ति मिलती थी, अब उसका कुल बजट भी 2.5 गुना से ज्यादा कर दिया है। हमारी ही सरकार पूरे देश में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के 10 बड़े संग्रहालय बना रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके मान सम्मान, आपके सुख सुविधा के लिए हम ऐसे ही पूरे समर्पण भाव से लगातार काम करते हैं, करते रहेंगे। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आप मेरे आदिवासी भाई बहन मुझे आशीर्वाद देने आए। ऐसा लग रहा है जैसे माता शबरी के आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको बहुत बहुत